Good morning students. I am Khushbu Verma and I am doing BSc from Lucknow University. So today I am here to teach you all NCERT Chemistry NCERT, that is chapter number 1, Chemical Reactions and Equations. So chalo, let's begin with the chapter. Under this chapter we will first cover the introduction. I'm going to give you a brief introduction about this chapter. Then we will study about chemical reaction. Yes, chemical reactions. Next topic will be chemical equations. Chemical equations. Balanced chemical equation. Balanced chemical equations. Next topic we will cover types of chemical reactions. Yes, types of chemical reaction. Next will be corrosion. Corrosion, we will study about corrosion. And the last is rancidity. Rancidity. केमिकल रिएक्शंस में हम लोग हमारी लाइफ में कौन कौन सी रिएक्शंस होती हैं डेली लाइफ में और इंडस्ट्रीज में रिएक्शंस कौन कौन सी होती हैं वो हम लोग इसमें देखेंगे. देन वी विल सी केमिकल इक्वेशन, हाउ वी कैन राइट द केमिकल रिएक्शन. So under this chemical equation we will see how we can give a chemical reaction in symbolic form. Then in balanced chemical equation we will see how we can balance the chemical equation. And then the next topic is types of chemical reactions. We will see how many types of chemical reactions are there. And the next topic will be corrosion. Corrosion हम लोग पढ़ेंगे. And the last topic is rancidity. So चलो let's begin with the introduction. So here we are dealing with the chemistry. In our day-to-day life or daily life we are seeing the examples of chemical reactions happening in our body or outside the body, है ना. तो हम लोग सबसे पहले यही पढ़ते हैं. केमिस्ट्री हो तो उसमें हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे मेडिसिन फॉर्म होती है. इट इज़ अ केमिस्ट्री, इट इज़ अ डेली लाइफ. बीमार पड़ते हैं, मेडिसिन लेते हैं, तो वो भी है. फूड हम लोग डाइजेशन करते हैं, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है. रेस्पिरेशन होता है बॉडी के अंदर, वो भी एक केमिकल रिएक्शन होती है ना. इंडस्ट्रीज में अगर कुछ सीमेंट वगैरह फॉर्म हो रही है तो उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है. अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, उसमें भी केमिकल रिएक्शन होती है. सो वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट द बेसिक, है ना, कि कैसे केमिकल रिएक्शंस जो होती हैं वो फॉर्म होती हैं और हमारी डेली लाइफ में कैसे यूज होती हैं. सो वी आर डीलिंग विद दिस. सो लेट्स there are two types of changes occurring in our day-to-day life. That is, first is physical change. Physical change. Physical change. What is physical change? It is the temporary change. What? Temporary change. Temporary change in which no new substance is formed. Substance is formed. Yes. फिजिकल चेंज क्या होता है? एक टेम्परेरी चेंज होता है ना, कुछ टाइम के लिए चेंज होता है एंड देन इट बैक्स टू इट्स नॉर्मल कंडीशन.
सो टेम्परेरी चेंज होता है जिसमें कोई भी नया सब्सटेंस नहीं फॉर्म होता, नो न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. लेट्स टेक एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड दिस फिजिकल चेंज. फर्स्ट एग्जाम्पल इज melting of ice. We are taking basic examples so that you can understand easily. Now melting of ice. First example. Second example. Second example. Mixing of sand and water. Yes. And the third example, let's take boiling of water. Boiling of water. So melting of ice, हम लोग देखते हैं अगर हम लोग वाटर को फ्रीजर में डाल देते हैं तो वो आइस क्यूब में चेंज हो जाता है ना, आइस क्यूब में चेंज हो जाता है. इट कन्वर्ट्स इनटू आइस क्यूब. वाटर change into ice. Yes. If we again put this ice cube at room temperature, then again it will be converted into water. First of all, water is converted into ice and then ice into water. Liquid to solid, solid to liquid. So this process is also known as sublimation. Yes, sublimation. Mixing of sand and water. So it is a temporary change. Mixing of sand and water. If we will mix sand into water, then again we can separate it, sand from water. है ना. फिल्टर पेपर से हम लोग इसको सेपरेट कर सकते हैं. सैंड को हम लोग वाटर से सेपरेट कैसे कर सकते हैं? फिल्टर पेपर से. सो इट इज़ ऑल्सो नॉट अ परमानेंट चेंज, इट इज़ अ टेम्परेरी चेंज. बॉइलिंग ऑफ वाटर. अगर हम लोग एक बार वाटर को बॉईल करते हैं तो वो दोबारा कूल हो सकता है. अगर हम फिर से उसको नॉर्मल टेम्परेचर पे रख दें तो वो फिर से कूल हो जाएगा और नॉर्मल वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा. सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ फिजिकल चेंज. यस, these are the example of physical change and this is the definition of physical change. Now we will going to study what? Chemical change. Chemical change. What is chemical change? It is the it is a permanent change in which new substance is formed. केमिकल चेंज एक ऐसा चेंज होता है, ऐसा परमानेंट चेंज होता है जिसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होता है. न्यू सब्सटेंस इज फॉर्म्ड. लेट्स टेक एन एग्जांपल टू अंडरस्टैंड केमिकल चेंज. सो ripening of fruits. सेकेंड एग्जाम्पल ले लेते हैं. बॉइलिंग ऑफ एग. यस, बॉइलिंग ऑफ एग. सो हाउ दिस एग्जाम्पल इज अ केमिकल चेंज. राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स. एक बार फ्रूट अगर राइपन हो जाता है तो इट कैन नॉट बी कन्वर्टेड बैक इनटू अ सीड और जो रॉ फ्रूट होता है उसमें वापस
ये कन्वर्ट नहीं होगा. बॉइलिंग ऑफ एग, एक बार हम लोग एग को बॉईल कर दें, it cannot be able to change in its normal form. So these are the chemical change, है ना. These are the chemical change. परमानेंट चेंज होता है, न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है. यस, सो दिस इज केमिकल चेंज. नाउ वी विल स्टडी अबाउट केमिकल रिएक्शंस. हम लोगों ने इंट्रोडक्शन देख लिया एंड नाउ वी विल सी केमिकल रिएक्शंस, हाउ केमिकल रिएक्शंस आर टेकिंग प्लेस इन आवर डेली लाइफ, है ना. वी आर गोइंग टू सी दिस chemical reactions. What are the chemical reactions? Chemical reaction, it is the process, by which two or more substance react with each other to form a new substance with different properties. So what is chemical reaction? It is a process by which two or more substance react with each other to form a new substance with different properties, है ना. प्रोसेस होती है जिसमें टू और मोर सब्सटेंस कंबाइन और रिएक्ट करते हैं so that new substance can be formed with different properties. Let's take an example. Simple example लेंगे. H2 plus O2 gives H2O. H2O. Yes. बैलेंस कर देते हैं इक्वेशन को. बैलेंसिंग हम लोग अभी आगे हम लोग वी विल लर्न हाउ टू बैलेंस अ केमिकल रिएक्शन. सो इसमें क्या है, हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रही है एंड देन इट फॉर्म वाटर, है ना. तो two substance are reacting with each other to form a new substance with a different property. तो यही कह रहा है कि ये different property है वाटर की. हाइड्रोजन से और ऑक्सीजन से इसकी प्रॉपर्टी डिफरेंट होती है. सो इट इज़ इन गैस फॉर्म, इट इज़ ऑल्सो इन गैस फॉर्म एंड इट जो प्रोडक्ट फॉर्म हुआ है वो एक्वस फॉर्म में है. सो दिस इज अ केमिकल रिएक्शन. अब हम लोग देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन जब होती है तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं. ठीक है, किसमें चेंज होता है, क्या स्टेज चेंज होता है, क्या कलर चेंज होता है, हम लोग अभी उसको स्टडी करते हैं. हेडिंग डाल लेते हैं. these are the following changes to determine that the chemical reaction has taken place.
सो केमिकल रिएक्शन अगर हो रही है तो कौन कौन से चेंजेस होंगे उसको डिटरमाइन करते हैं हम लोग. द फर्स्ट चेंज विल बी चेंज इन स्टेट. चेंज इन स्टेट है ना. अभी हम लोगों ने एग्जांपल देखा था वही हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन का, कि जब वो रिएक्ट करती हैं तो वाटर फॉर्म होता है. मीन्स टू गैसेस आर रिएक्टिंग विद ईच अदर टू फॉर्म एन एक्वस सोल्यूशन. सो वही है चेंज इन स्टेट. नेक्स्ट इज चेंज इन कलर. चेंज इन कलर. अगर रिएक्टेंट्स हैं और उनका कलर डिफरेंट है तो प्रोडक्ट में भी चेंज हो सकता है कलर में. सो इट इज द चेंज इन द केमिकल रिएक्शन. नेक्स्ट क्या होगा? इवोल्यूशन होगा गैस का. यस, इवोल्यूशन ऑफ गैस. नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर. टेम्परेचर चेंज हो सकता है. चेंज इन टेम्परेचर. So it depends. Temperature. So this is all about chemical reactions. Now we are going to study what chemical equations. Chemical equations क्या होती हैं? Chemical equation is a symbolic representation. It is a symbolic, yes, symbolic representation of chemical reaction, of a chemical reaction. It is a symbolic representation of a chemical reaction in the form of symbols and formula wherein the reactant entities are given on the left hand side, and product on the right hand side. So what is chemical equation? It is a symbolic representation of chemical reaction. Symbolic representation होता है. अगर मैग्नीशियम दिया है तो वो उसको हम क्या लिखेंगे केमिकल इक्वेशन में? Mg लिखेंगे. अगर ऑक्सीजन दिया है तो हम लोग O2 लिखेंगे. तो दिस इज अ what symbolic representation of any element or element given in the reactant side or product side in the form of symbols and formula. वेयर एंड जो लेफ्ट साइड पे दिया है उसे हम क्या कहेंगे? रिएक्टेंट कहेंगे. एंड जो राइट हैंड साइड पे दिया है उसे हम क्या कहेंगे? प्रोडक्ट. वी विल कॉल इट अ प्रोडक्ट. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. सपोज magnesium is reacting with oxygen to form magnesium oxide.
this is reactant, yes, reactant, and this is product. अब हम लोग इसका अगर सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन करते हैं, इफ वी विल डू द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन, देन द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन of the element magnesium is Mg plus O2, which gives MgO. इसका हम लोग अगर बैलेंसिंग करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 ऑक्सीजन Mg. तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे कैसे बैलेंस करते हैं केमिकल इक्वेशंस को, है ना, बैलेंसिंग हम लोग भी पढ़ेंगे. So the next is, लिख लो, the next is balanced chemical equation. What is balanced chemical equation? The chemical equation, the chemical equation that shows chemical reaction needs to be balanced, yes. The chemical equation that shows chemical reaction needs to be balanced. chemical equation हम लोगों ने पढ़ा था अभी कि symbolic representation होता है. तो जो chemical equation होती है वो ये दिखाती है कि chemical reaction को we have to balance it. We need to balance the chemical reaction. So a balanced chemical equation, a balanced chemical equation occurs when the number of atoms involved in the reactants side is equal to the number of atoms involved in the product side. Yes, product side. तो हम लोग ये देखेंगे केमिकल इक्वेशन को कैसे बैलेंस करते हैं. हाउ वी कैन बैलेंस द केमिकल इक्वेशन बाय पुटिंग इक्वल नंबर ऑफ एटम्स ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, मीन्स ऑन द reactant side, and the same number of atoms should be there on the product side. So let's take an example to understand how we can balance chemical equation. Zn plus H2SO4 gives ZnSO4. सबसे पहले हम लोग ये वाली क्वेश्चन देखेंगे. Fe in solid form plus H2O in gas form, in aqueous form. Fe3O4 in solid form plus H2 in gas form.
So how we can balance this reaction or chemical equation? Chemical equation, let's see. Here Fe is 3, here Fe is 1. So we will write the number of atoms here 3. Fe is balanced now. Let's see oxygen. Here oxygen is 4, here oxygen is 1. One molecule of oxygen is present here. So we will write here 4. Now check hydrogen, number of molecules or atoms in hydrogen. 4 2s are 8. 8 hydrogen, here is 8 hydrogen and here only 2 hydrogens are there. So how we can balance? 4 2s are 8. So 4 2s are 8. So now the chemical equation is balanced now. Let's check. 3Fe, yes. 8H2, 8H2. 4 oxygen, 4 oxygen. So the chemical equation is balanced now. Next example, let's take next example. Zn, H2SO4, Zn, SO4 plus H2. Let's see. Zn, 1 atom, 1. H2, 2, 2. SO4, 1, SO4, 1. So it is already balanced. No need to balance this equation. So like this we check whether the chemical equation is balanced or not. If not, we are going to balance it. So let's take one more example. जो हम लोगों ने अभी देखा था, Mg plus O2 form MgO, magnesium oxide. So how we can balance? Mg is 1, O2 is 2, O2 is 1. So यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे and to balance magnesium we will put here 2. So like this we balance chemical equation. रब कर दें. कॉम्बिनेशन. अब हम लोग क्या पढ़ेंगे? टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस. Under this heading, first reaction is a combination reaction. First reaction is combination reaction. What? Combination reaction. Combination, such a reaction in which a single product is formed from two or more reactants is known as combination reaction. So what is combination reaction? ऐसी reaction in which a single product form होगा with the reaction between two or more reactants, है ना. जो टू और मोर रिएक्टेंट्स रिएक्ट करेंगे तो एक सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म होगा, उसी को हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं. कॉम्बिनेशन नेम से ही पता लग रहा है कि कंबाइन हो रहा है और
two or more substance are combining with each other or reacting with each other. So let's take an example. So let's take an example. CaO, calcium oxide in the form of solid, H2O, liquid, Ca whole twice H, calcium hydroxide in aqueous form. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम क्या कहते हैं, स्लेग्ड लाइम कहते हैं, स्लेग्ड लाइम. इट इज इम्पॉर्टेंट. समटाइम्स it is asked that what is the chemical formula of slaked lime. So calcium hydroxide CaOH whole twice है ना, तो ये हो जाएगा इसका फॉर्मूला. So when calcium oxide reacts with water, it releases large amount of heat and form calcium hydroxide. ठीक है, जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है वो किस में हेल्पफुल होता है या किस में यूज होता है? इन विच इट इज यूज्ड इन वाइट इन कैल्शियम. कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज calcium hydroxide is used in white washing walls, है ना. हम लोगों ने देखा होगा व्हाइट वॉशिंग वॉल्स में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज करते हैं. उसके बाद क्या होता है कि जब उसको यूज करते हैं तो वो किससे रिएक्ट करेगा? जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो CO2 से रिएक्ट कर जाएगा, जो हमारे एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. हमारे एटमॉस्फेयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होती है उससे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करेगा. CaOH whole twice will react vigorously with, ये किसमें, एक्वस फॉर्म में है, और CO2 के साथ रिएक्ट करेगी जो कि गैस में है, एटमॉस्फेयर में प्रेजेंट होती है. And it will form calcium carbonate, yes, in solid form, plus H2O in liquid form. Calcium carbonate is formed after 2 to 3 days. After 2 to 3 days after reacting with carbon, calcium hydroxide जब react करेगा CO2 के साथ, तो after 2 to 3 days calcium carbonate is formed. which कैल्शियम कार्बोनेट का क्या यूज होता है? इट गिव्स शाइनी अपीयरेंस. हम लोगों ने देखा होगा शाइनी अपीयरेंस टू द वॉल, अपीयरेंस टू द वॉल. सो ये कैल्शियम कार्बोनेट का यूज होता है. एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये और किसका फॉर्मूला होता है? ये होता है मार्बल का फॉर्मूला. किसका होता है? मार्बल का केमिकल फॉर्मूला होता है मार्बल का. तो फिर से एक बार, केमिकल कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? केमिकल रिएक्शन इज अ रिएक्शन इन विच 2 or more substance are react to form a single product, है ना. 2 or more reactants react करेंगे to form a single product. It is known as chemical combination reaction. Yes, combination reaction. उसके बाद हमने एग्जाम्पल लिया CaO, कैल्शियम ऑक्साइड, जो कि वाटर के साथ रिएक्ट करेगा एंड रिलीज लार्ज अमाउंट ऑफ हीट. उसके बाद ये क्या फॉर्म कर लेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? स्लेक्ट लाइम कहते हैं. उसके बाद जब ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो वाइट वॉशिंग वॉल्स में यूज होता है, और उसके बाद जब वो उसको वाइट वॉशिंग वॉल में यूज करेंगे तो जो एटमॉस्फेयर में CO2 प्रेजेंट होगी उसके साथ ही रिएक्ट करेगा और क्या फॉर्म कर लेगा? कैल्शियम कार्बोनेट फॉर्म कर लेगा और वाटर फॉर्म करेगा. कैल्शियम कार्बोनेट का क्या यूज होता है? यह
हमारी वॉल्स को शाइनी अपीयरेंस देता है. So this is all about this reaction. So it is important and it is interesting to know about this, है ना. So let's take another example of combination reaction. और क्या एग्जाम्पल होंगे? बर्निंग ऑफ कोल्स. यस, बर्निंग ऑफ कोल, burning of coal. Let's see the chemical reaction. Carbon plus oxygen gives CO2. कार्बन किस फॉर्म में होती है? सॉलिड फॉर्म में, and ऑक्सीजन इन गैस फॉर्म एंड CO2 एक्वस फॉर्म में. तो ये बर्निंग ऑफ कोल की रिएक्शन है. नेक्स्ट देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन है. सी, इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन. टू reactants are reacting with each other to form a single product. नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? फॉर्मेशन ऑफ वाटर. यस, फॉर्मेशन ऑफ वाटर. H2 plus O2 form H2O. It is in gas form. The product will be formed in aqueous form. So 2 हाइड्रोजन बैलेंस करेंगे. 2 हाइड्रोजन, 2 oxygen, 1 oxygen. So here we will put 2 and here we will put 2. So the reaction is balanced now. Next example is burning of natural gas. That is methane. So we all know the formula of methane or not? CH4 in gas form react with oxygen and gives CO2 in gaseous form plus water in liquid form. So लिख लीजिए आप लोग. ये हो गई combination reaction and these are the example of the combination reactions. Next, the reaction is exothermic reaction. Exothermic, what is exothermic reaction? An exothermic reaction, an exothermic process releases heat. क्या करेगी एक्सोथर्मिक प्रोसेस? हीट को रिलीज करेगी एंड कॉज द टेम्परेचर ऑफ इमीडिएट surrounding to rise. रिलीज करेगी हीट को. जब कोई भी रिएक्शन होगी और वो जब हीट रिलीज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है टेम्परेचर जो होगा वो सराउंडिंग का वो राइज करेगा. सो दिस इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. If we take the example of exothermic reaction, then we can take daily life example or the reaction happening inside our body. So we all eat rice,
potato or bread, so it contain what? Carbohydrate. Rice, potatoes, bread, etc. contain carbohydrate. When we take inside our body these carbohydrate containing food, then what happens? This carbohydrate breaks into these carbohydrate these carbohydrates are broken down to form ग्लूकोज फॉर्म करेंगे. यस, ग्लूकोज फॉर्म करेंगे. कार्बोहाइड्रेट जब ब्रेक होता है तो क्या फॉर्म होता है? ग्लूकोज फॉर्म होता है हमारी बॉडी में. दिस ग्लूकोज, ये जो ग्लूकोज क्या करता है हमारी, दिस ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन. जो हमारी बॉडी में ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है उससे ये ग्लूकोज कंबाइन कर जाएगी. दिस ग्लूकोज combines with oxygen which is present in the cells. Which is present in the body, and it will combine with oxygen in the cells of our body and provides energy. ये जो ग्लूकोज होगा ये हमारे सेल्स में ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करेगा और हमारे बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड करेगी. सो इस स्पेशल रिएक्शन को हम लोग क्या कहते हैं? ये एक स्पेशल रिएक्शन है जिसे हम क्या कहते हैं? द टर्म गिवन टू दिस special reaction is respiration. है ना. फिर से हम लोग जो भी फूड ईट करते हैं which is कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड, वो कार्बोहाइड्रेट जब हमारी बॉडी के अंदर जाता है तो इट ब्रेक्स इनटू ग्लूकोज. ग्लूकोज ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है हमारी बॉडी के सेल्स में एंड इट प्रोड्यूस एनर्जी या प्रोवाइड एनर्जी. और इस रिएक्शन को, ये जो रिएक्शन हो रही है इसको हम क्या नेम देंगे? रेस्पिरेशन कहते हैं इसे. सो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. अब समझ में आया कि क्यों हम रेस्पिरेशन को एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं. लिख देते हैं. रेस्पिरेशन इज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है. इसकी हम लोग वो देख लेते हैं, रिएक्शन देखते हैं कि रेस्पिरेशन की कैसे होता है. C6H12O6 किसका फॉर्मूला होता है? ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है. इट इज द फॉर्मूला ऑफ ग्लूकोज कंबाइंस विद ऑक्सीजन प्रोड्यूस CO2 प्लस वाटर, है ना, प्लस वाटर एंड प्लस एनर्जी. यस. तो अगर हम लोग बैलेंस करें तो 6 कार्बन हो गया. 6 ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है और यहाँ पे 2 8.
और यहाँ पे 6 1 जैसे 6 2 से 12, 12 प्लस 1 11। तो यहाँ पे हम लोग 6 हाई इसको बैलेंस करेंगे और यहाँ पे हम लोग 6 ऐड करेंगे। अब चलो चेक करते हैं, लेट्स चेक द रिएक्शन इज बैलेंस्ड और नॉट। 6 कार्बन 6 कार्बन, यस। 12 हाइड्रोजन, 6 2 से 12 हाइड्रोजन। 6 ऑक्सीजन, 6 2 से 12 and 12 plus 6 18, 12 plus 6 18। और यहाँ पे कितना हो गया, ऑक्सीजन को बैलेंस कर रहे हैं। 12 12 plus 6 18, ठीक है। तो ये हुई बैलेंस रिएक्शन। So now we will study about endothermic reaction. Endothermic reaction. Endothermic, what is endothermic reaction? Endothermic reaction, and endothermic opposite, it is an opposite of exothermic reaction. So an endothermic reaction or process absorbs heat and cools the surrounding. जब ये सराउंडिंग से हीट को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ऑब्वियस सी बात है जो सराउंडिंग होगा वो कूल हो जाएगा। सो दिस इज एन एंडोथर्मिक रिएक्शन। एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल, द decomposition of vegetables vegetable matter into compost is also example of endothermic is an example of endothermic reaction. So क्या होता है कि वेजिटेबल मैटर जब उसको हम बाहर डाल देते हैं तो जब वो कंपोस्ट में होता है तो वेजिटेबल मैटर जब हम लोग उसको डंप करते हैं या कहीं डंप कर देते हैं तो उस पर प्रेशर, टेम्परेचर, हीट सब अप्लाई होता है और वो डीकम्पोज होता है कंपोस्ट में, है ना। हीट को एब्जॉर्ब करता है, हीट को एब्जॉर्ब करेगा ये जो वेजिटेबल मैटर होता है और कंपोस्ट में इसको कन्वर्ट कर देगा। सो दिस इज एन एग्जांपल ऑफ एंडोथर्मिक रिएक्शन। नेक्स्ट रिएक्शन इज decomposition reaction is just opposite of combination reaction. उसमें क्या हो रहा था, 2 or more reactant combined to form a single product, and इसमें क्या होगा, decomposition reaction में it will decompose, the single reactant will decompose to form the simpler ones. Reaction when single reactant breaks down to give
simpler product. Decomposition reaction, when a single reactant breaks down to give simpler product. Example FeSO4 on heat Fe2O3 फॉर्म होगा प्लस SO2 प्लस SO3, फेरिक ऑक्साइड फेरस सल्फेट. This is the example of decomposition reaction. We are seeing in this reaction that ferrous sulfate breaks into ferric oxide, sulfur dioxide and sulfur trioxide. So when we heat ferrous sulfate, it is present in the crystal form. Ferrous sulfate is present in the crystal form. So when we give heat to the ferrous sulfate, it will change. It will lose water and the color of this crystal changes, है ना. तो ये होगा इस रिएक्शन में. एंड उसके बाद यही होगा, जब हीट करेंगे तो ये वाटर को लूज कर देगा और इसका कलर चेंज हो जाएगा. और किसमें चेंज हो जाएगा, किसमें ब्रेक होगा, फेरिक ऑक्साइड में, सल्फर डाइऑक्साइड में और सल्फर ट्राइऑक्साइड में. सो दिस इज द रिएक्शन. राइट इन योर कॉपी दिस रिएक्शन and I am going to give you a next example of decomposition reaction. Calcium carbonate solid form में on heating calcium oxide फॉर्म करेगा and कार्बन डाइऑक्साइड. इसको हमने अभी पढ़ा था, क्विकलाइन कहते हैं. We call it क्विकलाइन. लाइमस्टोन, इसे हम लाइमस्टोन कहते हैं, ये हमने अभी पढ़ा था. सो लाइमस्टोन, it is also important. Sometimes it asks that write the chemical formula of limestone or chemical formula of quicklime. So you have to remember this. So this reaction is important. Why it is important? This reaction is used in many industries in the formation of cement. So this reaction is important. When in any decomposition reaction there is heat carried होती है, तो उसे हम थर्मल रिएक्शन कहते हैं. क्या कहते हैं? when decomposition reaction carried out by heating, it is called thermal decomposition. तो इस रिएक्शन को भी हम लोग क्या कह सकते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन. सो राइट इट डाउन इन योर कॉपी. नेक्स्ट रिएक्शन विल बी, हाँ एक और रिएक्शन देख लेते हैं. AgCl
silver chloride in the form of solid, and sunlight will act on the AgCl. Ag will be formed and chlorine will form Cl2. Yes. If we balance this reaction, chlorine molecule are 2. Here is 1. So we will write here 2. 2 Ag, 1 Ag. So we will write here 2. So this is balanced now. Yes, balanced now. When silver chloride turns grey in sunlight, this is due to, इसमें क्या होगा, जो सिल्वर क्लोराइड है वो किसमें ग्रे कलर में टर्न हो जाएगा. क्यों? क्योंकि इस पर सनलाइट पड़ रही है, इसलिए. ड्यू टू द डीकम्पोजिशन ऑफ सिल्वर क्लोराइड इनटू सिल्वर एंड क्लोरीन बाय लाइट. और क्या होता है, जब इस पर लाइट पड़ती है तो ये सिल्वर और क्लोरीन में क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा. तो एक ये रिएक्शन, एक ये एग्जांपल हो गया डीकम्पोजिशन रिएक्शन. सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स इनटू सिंपलर वंस on the presence of sunlight. So next reaction we will see displacement reaction. Displacement reaction. Displacement reaction. Displacement reaction is a chemical reaction. Is a chemical reaction in which more reactive element displaces less reactive element. As the name suggests, displacement. So यहाँ पे क्या होगा, displacement होगा. किसका? more reactive element का less reactive element के साथ displacement हो जाएगा. Let's understand it with the example. Suppose Fe is in form of solid, copper sulfate, CuSO4, copper sulfate is in aqueous form. Both will react and form FeSO4 in gaseous form plus copper in solid form. We will see that ferrous, we know that ferrous is more reactive. Copper is less reactive. So less reactive. Fe is more reactive, copper is less reactive. So Fe replaces copper and form ferrous sulfate. Yes. So it is an example of displacement reaction. एक और रिएक्शन ले लेते हैं. Pb, lead, is in solid form. CuCl2 is in aqueous form. Gives PbCl2 in aqueous form plus copper in solid form. So lead is more reactive than copper. Copper is less reactive. So lead will replace or displace copper and form lead chloride, and a PbCl2 form हो जाएगा. So this is the example of displacement reaction. Next we will see double displacement reaction. Yes, double
डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है? So let's understand this double displacement reaction with the help of an activity. We are going to perform an activity. So let us take one test tube, which contain what? Which contain barium chloride, Cl2. Take another test tube. Take another test tube which contains sodium sulfate, sodium Na2SO4, sodium sulfate. On mixing with barium chloride, sodium sulfate, it will, जब ये react करेगा, then it will form a precipitate of barium sulfate, BaSO4. yes, BaSO4 फॉर्म करेगा। इसकी रिएक्शन हम लोग लिख लेते हैं, Na2SO4 in aqueous form plus barium chloride BaCl2 in aqueous form. What it will give? BaSO4 sulfur plus 2 NaCl. So what we observe from this activity? We observe that white precipitate is formed by the reaction of ions SO4, this SO4 2 minus and Ba2 plus. ठीक है, तो SO4 और Ba2 प्लस में रिएक्शन होने के बाद क्या बना रहा है? एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म कर रहा है. दिस इज वाइट प्रेसिपिटेट एंड और ये जो सोडियम क्लोराइड है विल रिमेन इन द सोल्यूशन, ये फॉर्म हो रहा है. सो आई होप you have understood this activity. So let's define the definition of double displacement reaction. What is double displacement reaction? Such reactions in which there is an exchange of ions between the reactants are called double displacement reaction. क्या है? सच रिएक्शन इन विच देयर इज एन एक्सचेंज ऑफ आयंस. यस, एक्सचेंज ऑफ आयंस हो रहा है रिएक्टेंट के बीच में. एक्सचेंज ऑफ आयंस हुआ है तो क्या फॉर्म हुआ? एक वाइट प्रेसिपिटेट फॉर्म हुआ है ऑफ बेरियम सल्फेट. सो दिस इज डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन. ठीक है, दोनों रिएक्टेंट्स के आयंस जो हैं वो क्या कर रहे हैं? एक्सचेंज हो रहे हैं, डिस्प्लेस हो रहे हैं, तो इसे हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं. So this is double displacement reactions. Next reaction is redox reaction. Redox reaction.
A redox reaction is a type of chemical reaction that involves a transfer of electrons between two species. इसमें क्या होता है, रिडॉक्स रिएक्शन में एक ऐसी केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का बिटवीन टू स्पीसीज के बीच में ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का. यू विल स्टडी अबाउट रिडॉक्स रिएक्शन इन 11th क्लास इन डिटेल. पूरा एक चैप्टर है रिडॉक्स रिएक्शन का. सो लेट्स टेक एन एग्जांपल. CuO plus H2 heat give heat to these reactants and it will form copper plus water. So इसमें हम देखेंगे ऑक्सीडेशन कैसे हो रहा है और कैसे रिडक्शन हो रहा है. तो इसमें सबसे पहले हमें ऑक्सीडेशन नंबर देखना होगा और ऑक्सीडेशन स्टेट. सो टू कैलकुलेट द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉपर, the oxidation number of oxygen is -2. We will multiply with the, let's take the oxidation number of copper x and plus -2. इसकी -2 है ऑक्सीजन की, इसको 0 लेंगे. ठीक है, x लिया जो उधर चला गया तो +2, इसकी हो जाएगी +2. ठीक है, यहीं पे वाटर में देखें हाइड्रोजन में इसमें देखिए इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट 0 होगी. ऑक्सीजन क्या होगा, हाइड्रोजन लेट्स टेक 2x प्लस -2 इज इक्वल टू 0. यहाँ पे हाइड्रोजन की हम लोग ऑक्सीडेशन स्टेट निकालते हैं, -2 है ही, तो ये हो जाएगा x, इधर हो जाएगा +2, ये नीचे चला जाएगा और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1. तो कॉपर, ये देखो सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, कॉपर इज रिड्यूसिंग, ये रिडक्शन रिएक्शन हो गई, ये रिड्यूस कर रहा है रिडक्शन. और यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ये 0 है, यहाँ पे हो रहा है ऑक्सीडेशन. सो दिस इज redox reaction. So let's see what is oxidation and what is reduction. Oxidation it is the process in which there is addition of oxygen or removal of hydrogen. Is called oxidation. हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे देखो ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका, ऑक्सीजन का. ये देखो ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है ना, एडिशन हो रहा है, तो ये हो जाएगी ऑक्सीडेशन की एग्जांपल हो गया इसका ऑक्सीडेशन का. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा. अब रिडक्शन हम लोग देखते हैं, रिडक्शन वाला एग्जांपल देख लेते हैं. सॉरी, ऑक्सीडेशन का देखते हैं, इसमें कैसे रिमूव होता है हाइड्रोजन, तो उसे हम ऑक्सीडेशन कहते हैं. NH3 decompose into
decomposes into N2 plus H2। ये कैसे होगा ये देखते हैं। इसको x लेते हैं, नाइट्रोजन को x ले लेते हैं ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए, और इसका तो 3 है, 3 इंटू 1, 3 मॉलिक्यूल्स हैं, 1 हाइड्रोजन, ऑक्सीडेशन स्टेट 1 होता है। ये क्या हो जाएगा x इज इक्वल टू -3, ये इसका -3, इसका +3, इसका 0, इसका 0। यहाँ देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे रिमूवल हो रहा है हाइड्रोजन का, हाइड्रोजन का रिमूवल हो रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ठीक है, समझ में आ रहा है। या फिर ऑक्सीजन का एडिशन हो या फिर हाइड्रोजन का रिमूवल हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। आई होप you have understood this ऑक्सीडेशन और रिडॉक्स रिएक्शन। अब हम लोग किसकी बात करते हैं, रिडक्शन की। रिडक्शन क्या होता है, रब कर दें इसे, रब कर दें। रिडक्शन रिएक्शन क्या होता है, और रिडक्शन अपोजिट होता है ऑक्सीडेशन का। द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन and removal of oxygen, तो उसे हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड रिडक्शन कहते हैं इसे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, Mg plus H2 gives MgH2 means magnesium hydride, इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन स्टेज 0 0, और यहाँ पे देखो इसकी क्या हो जाएगी 2 और इसकी हो जाएगी -2। तो हम देख रहे हैं कि क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है हाइड्रोजन का, तो ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, अब आप लोगों को समझ में आया होगा रिडक्शन और ऑक्सीडेशन। सो द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, या फिर हाइड्रोजन ऐड हो या फिर ऑक्सीजन रिमूव हो, उसे हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हो रहा है। ठीक है, ये देखो इसमें एग्जाम्पल है, यहाँ पे हाइड्रोजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, रिडक्शन रिएक्शन। सो लेट्स आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक क्या पढ़ेंगे, कोरोजन। कोरोजन क्या होता है, the process of slow conversion of metals into their undesirable compound due to their reaction with O2, water, gas, acids, etc. present in the atmosphere. Is called corrosion. So ये एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें जो मेटल्स होते हैं जब वो एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, मीन्स जो
इन्वायरमेंट में एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन या कोई गैस या वाटर प्रेजेंट होता है, उससे जब रिएक्ट करते हैं तो अनडिजायरेबल कंपाउंड फॉर्म कर लेते हैं, तो वही कोरोजन होता है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आएगा। रस्टिंग होता है, रस्टिंग आयरन when reacts with O2 oxygen and moisture forms red substance called rust, है ना। हम लोगों ने देखा होगा आयरन की रीलिंग होती है, वो जब ऑक्सीजन या मॉइस्चर के कांटेक्ट में आती है उस पर रस्ट लग जाता है। या फिर हम लोग का जो आयरन गेट होता है, घर का जो गेट होता है, उस पर भी हम लोग देखते हैं रस्ट लग जाती है। तो कैसे लग जाती है? बारिश होती है, मॉइस्चर होता है एटमॉस्फेयर में जब और या फिर ऑक्सीजन के साथ जब वो रिएक्ट करती है आयरन का गेट जो होता है, तो उस पर डस्ट लग जाती है। तो दिस इज कोरोजन, ठीक है। अनडिजायरेबल कंपाउंड फॉर्म हो जाता है। रेड कलर का होता है जो रस्ट लगता है, रेड कलर का सब्सटेंस फॉर्म होता है, इसे हम रस्ट कहते हैं, तो वही हो जाता है, इसको हम कोरोजन कहते हैं। एंड द लास्ट टॉपिक, नाउ वी आर एंडिंग विद द चैप्टर, एंड द लास्ट टॉपिक इज डेंसिटी। Rancidity. What is rancidity? The taste and odor of food materials containing fat and oils changes when they left exposed to air for a long time, this is called rancidity कहते हैं। क्या है कि अगर कोई भी ऑयल कंटेनिंग या फैट कंटेनिंग फूड को हम लोग बाहर लंबे समय के लिए छोड़ देते हैं, तो उसमें एक बैड स्मेल आने लगती है और टेस्ट आने लगता है, टेस्ट आने लगता है, तो उससे हम रैंसिडिटी कहते हैं, है ना, फूड का खराब हो जाना। तो इससे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं रैंसिडिटी, रैंसिड कोई फूड ना हो, उसे हम लोग कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? एंटीऑक्सीडेंट्स उसके लिए यूज करते हैं। एग्जाम्पल क्या है? स्टोरिंग ऑफ फूड, कैसे हम लोग इसको प्रिवेंट कर सकते हैं, वो चीज़ है स्टोरिंग ऑफ फूड in airtight container and by flushing out air with nitrogen. Yes, कोई अगर हम लोग फूड को स्टोर कर रहे हैं तो एयर टाइट कंटेनर होना चाहिए, और उसमें हम क्या नाइट्रोजन गैस को डाल देते हैं। और नाइट्रोजन गैस को जब हम लोग डालते हैं तो एक ये जो होता है एंटीऑक्सीडेंट होता है। जो नाइट्रोजन गैस है वो एंटीऑक्सीडेंट होती है। हम लोगों ने देखा होगा चिप्स के पैकेट, कुरकुरे के पैकेट जो हम लोग डेली यूज़ में खाते हैं, या फिर उसे तो उसमें उस पैकेट में क्या होता है, हम लोग देखते हैं वो फूला सा होता है पैकेट, उसमें गैस होती है नाइट्रोजन गैस, ताकि वो प्रिवेंट करे रैंसिड होने से। जो चिप्स होते हैं या कुरकुरे होते हैं या बहुत सारी चीज़ें आती हैं आजकल, तो वो ख़राब ना हो, इस वजह से
या रैंसिड ना हो, तो इसलिए हम उसमें कौन सी गैस को ऐड करते हैं, नाइट्रोजन, उसको फ्लश कर देते हैं नाइट्रोजन गैस से. So that's all about this chapter, chemical reaction and equation. I hope you like this video or this lecture, and I hope you all understand this chapter. Thank you so much.